Hello everyone. So this is question 6.15 from System of Particle and Rotation Motion. और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और थोड़ा लेंदी है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं सबसे पहले इसका फॉर्मेट बता देता हूँ कि आपको किस तरह से इसे लिखना है इसे इफ दिस कम इन योर एग्जाम। उसके बाद मैं बताऊँगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस सॉल्यूशन, राइट। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ये पर लास्ट में आपको बता दूंगा कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर, a circular hole of radius r by 2 is cut out. The center of the hole is r by 2 from the center of the original disk. Locate the center of gravity of the resulting flat body. तो यहाँ पर आपका फिगर बना हुआ है, ये पूरा आपका डिस्क है ये वाला, और ये बीच में आपका एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे कुछ नहीं है, दिस इज कट आउट पार्ट। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे जो ग्रीन कलर से ड्रॉ है वो आपका कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो आपको पूरा का पूरा ये वाला पार्ट है, ये जो लाइन है, ये लाई ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड दिस इज द सेंटर, दिस इज ए जीरो origin, and this from this here to here it is r by 2, and from here to here it is r। ठीक है, अब क्या है, आपको सबसे पहले लिखना है गिवन दैट। गिवन दैट में यूनिफॉर्म डिस्क that have radius r, circular hole of radius r by 2, center of hole is at r by 2 from center of disk, is center of the hole is r by 2 from center of disk, that is you can see in the figure। एंड आपको नाउ क्या एज्यूम करना है, लेट m1 द मास ऑफ द होल डिस्क विदाउट द मास ऑफ होल डिस्क विदाउट द होल, सॉरी यहाँ पे होल का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, विदाउट द होल। ओके, so this is the disk is going to seems like this without the hole, and the mass of m2 is the mass of the cutout part, that the small part that get cut out from the sphere, whose mass we have to let m2, and the density of the material that is used for the whole for the both thing is rho, right? And because the density of cutout part and the density of the whole cylinder, if we assume, is from made from same material, cut out from same material, so the density is going to be same. Now for calculating m1, we can use mass is equal to volume, mass is equal to volume into density, right? And here for density you have to write d also, that is thickness, right? D, that is thickness, into rho. So area into thickness into rho, and D is the thickness, D, right? So D into rho. M2 is pi r square by 2. M2 means the area, the mass of a small disk, and the radius of a small disk is r by 2 from the origin, you can see in the figure. So pi r square by 2 into D, that is thickness, into rho। तो रो आपका हो गया डेंसिटी, ये थिकनेस, और ये आपका एरिया। तो ये हो गया आपका टोटल मास गिव कर देगा ये। ठीक है, और ये इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी इंटू रो। ओके, अब यहाँ पर से आपका रिलेशन क्या आ जाएगा कि पाई आर स्क्वायर डी इंटू रो ही आपका क्या था, m1 था। तो m2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू आपका m1/4 हो जाएगा। ठीक है ना, m2 इज m1/4। तो यहाँ पर आपका ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर m2 इज होगा, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, m2 इज इक्वल टू m1/4। ये आपका रिलेशन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रिलेशन मिलने के बाद ये आपका एक इक्वेशन मिल गया। इसी इक्वेशन का हम लोग आगे यूज करेंगे इसमें वैल्यू पुट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए m1 को। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा, the negative mass concept for calculating the new body of center of mass of new body। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लिखते हैं center of mass m1, that is mass of the whole body without cutting out the part m1 for this, and after that the center of mass for that object, that body, and that is going to lie on the origin for the whole disk, the center of mass will lie at origin पूरा डिस्क के लिए विदाउट कटिंग द पार्ट। सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, बीच में, एट द origin, राइट। तो फॉर दिस वी हैव रिटन 0।
minus, because we are going to cut out the part, so minus this body. This is a small ring, this is a small, sorry, this is a small circular disc we have to cut out. We have to treat it as a negative mass. So minus m2, the mass of that a small disc, and the center of mass is O01, and 01 is nothing but this 01, and the 01 position at x-axis is r by 2. So we have taken r by 2 at 01, and नीचे on the denominator हम लोग क्या लेंगे, m1, that is mass of the whole disc, minus the negative mass, the cut out part mass, so m2, right. उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा 0, और m2 from this relation that is m1 by 4 into r2, and r2 is o1, that is the center of mass of that cut out part, right, by m1 minus m2 के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे m1 by 4। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, माइनस r by 6। ठीक है, अब माइनस r by 6 के साथ माइनस क्यों आया, इस माइनस का मतलब है कि ऑन द एक्स एक्सिस द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू फिगर आफ्टर कटिंग आउट दिस पार्ट, the center of mass will lie for the new figure on minus x axis, means minus r by 6 on this side, on left side of the origin, minus r by 6। ठीक है, तो this is the x coordinate of your center of mass, right। तो इस तरह से आपको ये पूरा पार्ट लिख लेना है, एंड दिस इज योर गोइंग टू बी योर आंसर। अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट दैट इज यूज्ड हियर। ठीक है, तो दिस इज द नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट, नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें इस फिगर का हम लोग को निकालना है, अगर इस फिगर का हम लोगों को सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो हम लोग कहते हैं कि इस फिगर को बनाया किस तरह से गया है। तो इस फिगर को हम लोगों ने किस तरह से बनाया है, एक पूरा का पूरा हम लोगों ने डिस्क लिया था विदाउट कटिंग आउट द पार्ट, माइनस कर दिया हमने एक छोटा सा पार्ट जो कि यहाँ पर लाई करता था, एक छोटा सा डिस्क जो कि यहाँ पर लाई करता था। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने इस पार्ट को माइनस कर दिया है। तो हम लोग सबसे पहले इसके लिए क्या लिखते हैं, फॉर गेटिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस फिगर, we will first of all write x, that is new COM, is equal to mass of this part, the whole part, into center of mass of this COM1, COM1 minus, because we are cutting out the part, so mass of this part m2 into center of mass of this part COM2, ये आपका m2 है, ये आपका m1 है, बाई m1 मास ऑफ द होल पार्ट माइनस मास ऑफ द कट आउट पार्ट। और इस यही आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है। इसी फार्मूला पे बेस्ड आपको ये बना लेना है, इसी फार्मूला पे बेस्ड आपका ये जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने सॉल्व किया है यहाँ पे, एंड दैट्स इट। अगर आपको ये फार्मूला, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, इसमें कुछ है भी नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। दिस इज जस्ट नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, that's it। okay, okay, bye।